आप लोगों की नेतागिरी दारू जुगाड़ चलाने वाले कैसे कर सकते हैं? कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो कौम के लिए तुमको करनी है, कल तुमको अल्लाह को मुंह दिखाना है। जब जब इलेक्शन आता है तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वाले करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं जो हमको आपस में बांट देते हैं और उसमें जो हमें नुकसान होना पड़ता है वो आप देख रहे हो आज। जो भी अभी बाहर के जो भी इंसान आएगा वोट लेके चले जाएगा, या बिरयानी के अंदर, अजमेर जाने के अंदर, फार्म हाउस के अंदर, उसके अंदर बिक जाते हैं। जब इलेक्शन आता है, जब आप सो जाते हो, एक बिरयानी के अंदर आप लोग बट जाते हो। એ સમીર આરએમડી ખાતેમાંથી આવેલી છે આરએમડી બરાબર તો વર્ક ઓર્ડર છે બરાબર તમે વર્ક ઓર્ડર મને નથી આપતા હું ક્યારનો ઊભો છું ક્યારનો માગું છું બરાબર પહેલાં એમને પણ કીધું યાર તમે અમારું કોઈ સાંભળતા જ નથી બરાબર હું ક્યાં ના કહું છું તમે ના કરો યાર પણ અમારા સાહેબે જે ઓર્ડર કર્યો છે એ પ્રમાણે તમે સાહેબ આપો ને કોઈ અંદર કોઈ ના નહીં પાડતું ના તો કોઈ નહીં પાડે તો આનો મતલબ શું એવો કોઈ પ્રશ્ન જ નહીં આટલા મોટા વિસ્તારના અંદર બે બાજુ જુઓ, બે બાજુથી મુસ્લિમ સમાજનો એક વિસ્તાર છે, એમાં એક પણ પ્લેગ્રાઉન્ડ નથી. આ એક પ્લેગ્રાઉન્ડ બચ્યું છે જેને નકશા ઉપર પણ છે, ઔડાના નકશા ઉપર પણ સર્વે નંબર 125 આપો, અમારી પાસે ડોક્યુમેન્ટ છે, હું આપને બતાવી દઉં. તો બાળકોની બી લાગણી એ છે કે અમારું ગ્રાઉન્ડ જતું રહેશે એટલે બધા એના માટે આવ્યા છે. સાહેબની જ આપણે વેઇટ કરીએ છીએ. આપ શું કહો છો કે કામ ચાલુ રાખો, આપણે થોડી વાર રોકાઈ જાઓ, અમે તમને કામ કરીને આપીશું. ના ક્યાં છે? અને એ ભાઈ એમની જવાબદારી નિભાવે છે, સરકારી કર્મચારી છે. એમણે કીધું 300 મીટરનો નિયમ છે, આપને જાણ હોવી જોઈએ. તો એ જે કહે છે કે 50 મીટરમાં હોય મારી જવાબદારી આવે છે, એણે ત્યાં ઉપર સાહેબને વાત કરી. એમણે કીધું જે અધિકારીઓ એમની સાથે વાત કરાવો. આપ વાત કરવા તૈયાર નથી. એ તો ક્યારના એમની માટે ઊભા છે. ઓકે, વેલકમ. પાણી કે સાથે ગ્રાઉન્ડ છે ભાડું. જો એ ગ્રાઉન્ડ હોય તો આપ એમાં મદદ કરો, અને ના હોય તો આપ આપની રીતે રહી શકો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. પણ બેસીને આના ઉપર मैं आपने सही सिक्का वाला नक्शा बताया सर, आपने सही सिक्का वाला नक्शा बताया. मैं आपने 7 बार જોઈએ તો 7 बार बताओ. आपने सही सिक्का वाला नक्शો भी बतायो. ત્યાર પછી આપની જવાબદારીમાં આવે છે કે જે અમે બતાવીએ છીએ સાચું છે કે ખોટું છે. લઈ લો લક્ષણ હું આવીશ 3 વાગ્યા પછી. અત્યારે મારે એક વોટ્સએપ કરતો અવલ જવલ હા આપો. એનું કહેવું એવું છે કે ભાઈ અહીંયા આગળ અમારે ખાલી તાર ફેન્સિંગ કરવાની છે, બાળકો અંદર રમે તો અમને કંઈ વાંધો નથી. એમાં પેલા જે અધિકારી જે છે મોન્યુમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી આવેલા એક અધિકારી, એમણે એવું કીધું કે આપની પાસે વર્ક ઓર્ડર હોય તો તમે અમને બતાવો, અમે અહીંયાથી જતા રહીએ છીએ. તો એ કહે છે કે સાહેબ આવે છે. એટલે મેં વાત કરી કે મેં કીધું સાહેબ આ એક જ ગ્રાઉન્ડ છે, આટલા મોટા વિસ્તારના અંદર મુસ્લિમ સમાજના વિસ્તારમાં એક પણ પ્લેગ્રાઉન્ડ નથી. તો અહીંયા એક બાળકોના રમવાનું જે ઔડાના નકશામાં પણ બતાવી રહ્યું છે, સર્વે નંબર TP 42-2 ના અંદર સર્વે નંબર 126માં પ્લેગ્રાઉન્ડ છે, સર્વે નંબર 125 ના અંદર ગાર્ડન બતાવે છે. હવે આટલું મોટું સરખેજ રોજાનું ગાર્ડન હોય તો એની બાજુમાં બીજું ગાર્ડન બનાવવાની કોઈ જગ્યા છે? તમારી પાસે બે અહીંયા આગળ રિઝર્વેશન પ્લોટ પડ્યા છે જે અદાણી સ્કૂલની બાજુના અંદર છે, ત્યાં તમે ગાર્ડન બનાવી શકો. અલબ્રુજની પાછળ તમારી પાસે 2 રિઝર્વેશન પ્લોટ પડેલા છે, તમે ગાર્ડન ત્યાં બનાવી શકો. અહીંયા બાળકોને રમવા માટે એક ગ્રાઉન્ડ છે જે તમે દર્શાવેલું છે, છતાંય તમે એનું પોઝિશન કેમ લઈ રહ્યા છો? એને ડેવલપ કરીને આપી દો ને, તમે હેન્ડઓવર કરી દો પબ્લિકને. માન્ય મોન્યુમેન્ટના દરેક જગ્યાએ હેરાન પરેશાન થવાનું, બાળકો અહીં નહીં રમશે તો જશે ક્યાં? બીજું કે આટલા મોટા તમારી પાસે વાયદા કરીને ઇલેક્શનમાં જે આવ્યા હતા ને જે જતા રહ્યા, હું તો હારીને બી તમારા વચ્ચે છું. આ બાબતે તમારા લોકોનો સાથ અને સહકાર મળ્યો તો આજે તમને આ વસ્તુ મેં લીગલ કરાવીને આપી દીધી હોત. આ તમારા લોકોની બી ભૂલ છે, તમે સ્વીકારી શકો છો કે તમારા પાસે બોલવાવાળું એક અવાજ હતું, એને પણ તમે સપોર્ટ ના કરી શક્યા, અને છતાંય હું હારીને પણ તમારી વચ્ચે ઊભો છું. भाइयों आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी क्या कर सकते थे, बड़ा अंदाजा है आप? 100% सच्ची बात है. हम तो हार के भी तुम्हारे बीच में खड़े हैं, हम हार के भी बीच में खड़े हैं. ना तुमने नफीसा बेन को साथ दिया, ना मेरे को साथ दिया, और तुम कहते हो कि हमारी प्रॉब्लम में खड़े रहो. जब तुम्हारे उम्मीदवारी तुम्हारे लोकल नहीं होंगे तो बाहर वाला तुम किसके पास जाके रजूआत करते हैं? हमने इलेक्शन में पूरी यही बात करी थी कि कोई भी है लोकल को सपोर्ट करो, लोकल तुम्हारे लिए आधी रात को आके खड़ा रहेगा. लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया. जब इलेक्शन आता है, जब आप सो जाते हो, एक बिरयानी के अंदर आप लोग बट जाते हो. आप लोगों की नेतागिरी दारू जुगाड़ चलाने वाले कैसे कर सकते हैं? आपने पूरी हिस्ट्री 20 साल में देखी है, कौन कहाँ था, कौन कैसा था. एक ईमानदार इंसान पे भरोसा करा होता. आज तुम्हारे लिए आज हम अभी खड़े हैं, तो अगर हमारे पास थोड़ा सा भी पावर होता तो हम आपको ये लीगल करवा के देते. સહી વાત છે 100% की बात. जब देखो हार के भी हमारा कोई पावर नहीं है, लेकिन अधिकारी ने हमारी बात को माना ने, तो अगर जीते होते तो क्या होता? सही बात है. आप लोगों को देखना है. आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के सरखेज में
कॉरपोरेशन की तरफ से एक विवाद सामने आया है। यहाँ पर जो सरखेज रोजा के पीछे जो खुला प्लेग्राउंड है, खुला मैदान है, जहाँ पर बरसों से यहाँ के युवा जो हैं क्रिकेट खेला करते थे। इनके पास सरकार की तरफ से कोई प्लेग्राउंड नहीं है, इनके पास सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। ये जो कुछ बची थी ज़मीन सरकार की, वह उसी पे ये लोग अपना ग्राउंड बनाकर क्रिकेट मैच वगैरह खेल रहे थे और खेलते आ रहे हैं। यहाँ पर एक दुख इन आवाम को ये भी है कि इनके साथ आज इनके चुने हुए काउंसिलर एक भी हाजिर नहीं है, जो चारों चार भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और आज दुख इनको ये भी है कि इनको हराने में जो हमारे ही समाज के, हमारे विस्तार की लोकल आवाम जुटी थी, आज उनकी आंख कहीं ना कहीं खुली है कि हार कर भी ये लोग उनकी आवाम की समस्या के बीच में खड़े हैं और कहीं ना कहीं इनकी मांग को सुना है। कलेक्टर खुद यहाँ पर आए, मामलतदार ने इनकी बातों को सुना, अधिकारियों ने इनको सुना और इनको ये आश्वासन भी दिया कि आपकी जो समस्याएं, आपकी जो रजूआत है उस आवाम के लिए, आपके बच्चों के लिए जो प्लेग्राउंड है उसके लिए अभी हम फिलहाल जाते। जो बीच में डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस हैं, 2 दिन का समय इन्हें दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस पूर्ण करने के बाद अजीज पटेल और नफीसा बेन जो हैं आने वाले दिनों में इसकी प्रोसेस को पूर्ण करके किस तरह से प्लेग्राउंड को अभी भी आने वाले दिनों में बचाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पे अजीज भाई से बात होगी। सर, कैसे देखते हो ये, इसको बचाने के लिए आपकी मेहनत रही है कल से 2 दिन से? ये मुझे भी कॉल कर रहे हैं कि इसके लिए कुछ आवाज़ उठानी चाहिए और आज कहीं ना कहीं वो आवाज़ आपने उठाई और इन लोगों को पीछा जाना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको इस ग्राउंड की भूमिका के बारे में बता दूं कि पिछले 20 साल से पहले यहाँ पर ये खुला ग्राउंड था। अकेला इंसान यहाँ से आने जाने के लिए डरता था। हमने यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा रिपेयरिंग किया और उसके बाद में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड तैयार किया। पिछले 20 साल से यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब सरखेज और जुहापुरा, मक्तमपुरा विस्तार के अंदर हमें 4-4 टीपी होने के बावजूद भी एक भी प्लेग्राउंड नहीं दिया गया। आज बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे एक ग्राउंड बचा है और जो पिछले 5 साल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे पास उसके एविडेंस है, औड़ा ने इसको प्लेग्राउंड के लिए सर्वे नंबर 125 को औड़ा ने प्लेग्राउंड के लिए बताया है और उसके बाजू में सर्वे नंबर 126 है, उसमें गार्डन बताया गया है। आज यहाँ पर ये 2 दिन से फेंसिंग के लिए कॉर्पोरेशन के अधिकारी आए थे, तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि भाई ये काम है। वहाँ पे एक मॉन्यूमेंट के अधिकारी भी आ गए, उन्होंने उनसे काम करने का परमिशन मांगा कि भाई आपका वर्क ऑर्डर बताइए, तो उनके पास वर्क ऑर्डर नहीं था। वो बोल रहे थे कि भाई मामलतदार साहब आ रहे हैं। जब मामलतदार साहब आए तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये सरकारी ज़मीन है और ये हमारा हिस्सा है। हमने उनको हमारे डॉक्यूमेंट्स बताए कि सर ये यहाँ पे तो प्लेग्राउंड बताता है, आप इसको एक्वायर कर रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न बताइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम खातरी कर लेते हैं। 2 दिन का उन्होंने हमें वक्त दिया है कि हम देख के फिर बाद में करेंगे। लेकिन मेरी रजूआत ये है कि यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड एक बताया गया और उसके बाद ऐसी क्या इनको ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ पर भी बच्चों के खेलने के लिए ये लोग बंद करवा रहे हैं। यहाँ की आवाम जाएगी कहाँ पर? 4-4 टीपी होने के बावजूद भी एक भी प्लेग्राउंड यहाँ पे बच्चों को नहीं दिया गया, क्योंकि माइनॉरिटी का इलाका है। मैं आपको यहाँ से खड़े रह के बता रहा हूँ कि ये सर्वे नंबर 125 के ग्राउंड में हम खड़े हैं, बाजू में सर्वे नंबर 126 में वो गार्डन बनाने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ से थोड़ा दूर सर्वे नंबर जो आगे अलग से दिख रहा है वो एक दूसरे समाज का, चुनारा समाज का वहाँ पे कब्रिस्तान है, जिसको वहाँ पे वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पे इन्होंने कुछ किया तो फिर वापस मुसलमानों को इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो आप जो पवित्र चीज़ है उसको वहाँ पे रहने दीजिएगा, प्लेग्राउंड है उसको डेवलप करके दे दीजिएगा। अब अहमदाबाद के अंदर मुसलमान जाएगा कहाँ पर खेलने के लिए भी जगह आप एक्वायर कर रहे हो। तो बस मेरी एक रजूआत है और अधिकारियों को हमने ये सब चीज़ें बताई, अधिकारी मान गए, 2 दिन का वक्त दिया और अभी वो यहाँ से चले गए। सर, ये रजूआत के बीच कितना दुख है, हारने के बाद भी आज आवाम के बीच में आप लोग वैसे ही खड़े हो जैसे जीते हुए नुमाइंदे हो। नहीं, असल में क्या है, हमारे समाज को राजनीति के अंदर इतना समझ नहीं है और एजुकेशन के अभाव की वजह से कुछ तकलीफ़ें हो जाती है। जब इलेक्शन आता है तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वाले करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं जो हमको आपस में बांट देते हैं और उसमें जो हमें नुकसान होना पड़ता है वो आप देख रहे हो आज कि यहाँ पे हमारी लीडरशिप प्रेजेंट करने के लिए कोई भी नहीं है। आज यहाँ पे एक्स कॉरपोरेटर नफीसा बेन भी हाजिर है, मैं भी हाजिर हूँ। हमारी जो पहुँच है, हम जितनी बात कर सकते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड गया तो फिर ये आवाम को नया इनका उम्मीदवार चुनना पड़ेगा। तो वो लोग तय करेंगे जब वक्त आता है इलेक्शन का तो आपस में बंटते क्यों? एक बिरयानी के अंदर आप बंट जाते हो। आप लोगों को सोचना होगा। हम तो चलो हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, नया मुस्तकबिल जब आएगा तो आप उसको देखो कि वो आपके बीच में खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। आप उसका साथ दो,
आपकी बातें ऊपर तक पहुंचाने वाले इंसान का साथ दो। आपकी बातों को ऑफिस में बैठ के ऑफिस में ही खत्म कर दे। हमने अभी जो हमारे दो कॉर्पोरेटर हैं बाजू में, उनको फ़ोन किया है, लेकिन वो भी मसरूफ़ है, वक्त के हिसाब से वो सही टाइम पे पहुंच नहीं पाए। हम लोग तो अभी जब भी हमारी कौम को ज़रूरत होगी या लोगों को हमारी ज़रूरत होगी सामाजिक कामों के लिए, हम अवेलेबल है। चलिए, आवाम ने की गई हुई भूल जो है उसको सुधारने का एक मौका मिला है कहीं ना कहीं, और इसी तरह से ये लोग हारे हुए नुमाइंदे आवाम के बीच में खड़े रहते हैं और आने वाले दिनों में भी खड़े रहेंगे। कैसे देखते हैं नफीसा बहन, अगर आप लोग समयसर नहीं पहुंचे होते, पिछले 2-3 दिनों से अजीज भाई पटेल जो है उनकी भी काफ़ी एक दर्द रहा है, और हम लोगों से भी चर्चा करते रहे कि आप आइए और इसको समझिए और इसका एक जो है प्रसारण कीजिए, जो पूरा प्लेग्राउंड को ये लोग तार फेंसिंग करना चाहते हैं। तनवीर भाई पहले भी ये लोग आ चुके थे और अजीज भाई ने हमने मिलकर इसको वो करा था जब मैं कॉर्पोरेटर थी, और इसके लिए हमने लड़े भी थे, बोले भी थे और उनको सब बताया कि ये चीज़ है। लेकिन अभी आप देखो हर एक जगह पे वो लोग कोटन कर रहे हैं और कोई माइनॉरिटी इलाकों के अंदर उनको कोई सुविधा देनी ही नहीं है। गार्डन को ले लो या प्ले ग्राउंड को ले लो, आप देख लो कहीं भी, लेकिन उनको देनी ही नहीं है। और हमारे भी बहुत, अब मैं आपको क्या कहूँगी, मैं कहूँगी महान आत्मा है, ये मेरा वर्ड हैगा, महान आत्मा। जब इलेक्शन आता है ना तो वो साथ नहीं देते, स्थानिकों का साथ देना चाहिए जो उनके लिए लड़ सके, चाहे अजीत भाई हो चाहे हम हो, जो भी। अभी बाहर के जो भी इंसान आएगा वोट लेके चले जाएगा, या बिरयानी के अंदर, अजमेर जाने के अंदर, फार्म हाउस के अंदर, उसके अंदर बिक जाते, तो कैसे कितने खड़े रहते हैं। तो चंद पैसों के लिए तो ना बिके, कम से कम इलेक्शन आवे तो एक सपोर्ट करो। पैसा हर बार पैसा ही काम नहीं आता, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो कौम के लिए तुमको करनी है। कल तुमको अल्लाह को मुंह दिखाना है कि तुमने क्या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तुमने क्या करा, आने वाली नस्लों के लिए। तो ये चीज़ होनी चाहिए और इसके अंदर हम आगे भी जाएंगे अजीज भाई, हम, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों की तो आप लोगों को भी बुलाएंगे। और उनसे पहले भी हमने बात करी है, लेकिन अभी स्टाफ सारा नया है तो फिर से हमको वही कखगसी दोहराना पड़ेगा सारा कि भाई ये है ये है ये है, बराबर, क्योंकि नए आते वापस हमको शुरू वापस करना पड़ता है, बराबर। मैं यहाँ से ये जितने भी लोग खड़े हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि भविष्य के अंदर जब तक इलेक्शन जब भी आए, 2 बातों पे आप ध्यान रखो। एक, हमारे बुनियादी सुविधाएं, गटर, पानी, लाइट, रास्ते, और दूसरा एजुकेशन। अगर एजुकेशन की और ये खेल कूद की जो बात करता है आप उसका साथ दो, वो आपको कहीं से भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें ला के देगा सरकार में से, वो अपनी कोशिशें कर सकता है। लेकिन आप क्या करते हो, जिन लोगों ने गलत धंधे किए उन लोगों को इलेक्शन के आखिर में क्या होता है, अक्सर यही होता है कि जो बुरे धंधे करने वाले हैं वो फ्रंट पे आ जाते हैं, अपने अपने एरिया में एक डेग पका देते हैं, कोई अजमेर ले जाता है जैसे नफीसा बहन ने बोला, और बाकी सब तो आप समझदार हो क्योंकि आप हमसे ज़्यादा जानते हो। क्या मैं ये गलत बोल रहा हूँ भाई? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि गलती हुई है? हमको खाना नहीं है, किसी से दबना भी नहीं है। हम किसी से दबने वाले लोग नहीं हैं, किसी से भी दबने वाले लोग नहीं हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे एरिया में, चाहे मुस्लिम एरिया है, पूरे अहमदाबाद में कौन क्या कर रहा है आपको पता है। तो आप लोग बिक मत जाओ, आप लोग अपना पावर बताओ। इलेक्शन के टाइम पे जो पावर होता है, सच्चा इंसान कोई भी हो उसका साथ दो, तो आप लोगों की ये सुविधाओं में आप लोगों के लिए वो खड़ा रहेगा। ये भी आप एक बात बताएं कि 4 साल का जो कार्यकाल बीता, यहाँ से जो भी चुनाव में जीत के गए, तो 4 साल में सरखेज वार्ड को क्या मिला वो भी इनको बता दीजिए। कुछ मिला है सरखेज वार्ड को? ये तो आप लोग खुद जानते हो, आप लोगों के टैक्स डबल हो गए। 4 साल में कोई झांकने नहीं आया, चाहे विधानसभा का इलेक्शन ले लो, लोकसभा का इलेक्शन ले लो या कॉर्पोरेशन का इलेक्शन ले लो, जो बाहर के लोगों को यहाँ बाजू टिकट दी गई और उन लोगों ने आज भी वोट लेके वोट बिगाड़ के चले गए। तुम स्थानिकों के लिए लड़ो, अगर टिकट नहीं मिलती तब भी, और अगर कोई भी स्थानिक आता है तो उनके लिए भी आवाज उठाओ कि नहीं, ये बंदे को हम, इनका घर ये पास में, हम आधी रात को इनको पकड़ सकते हैं, तो ऐसे बंदों को आप वोट दो। जो तुम्हारे को तुम वोट दोगे ना, तुम्हारा फोन तक रिसीव नहीं करेगा, बाहर पट्टे वाला घर के बाहर बोल देगा यही नहीं, हम तो आधी रात को भी आके खड़े होंगे ना, आपसे मिलेंगे। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये ऐसे गरीब बच्चों का ये ग्राउंड है और इन गरीब बच्चों के लिए ये 2 नुमाइंदे आए हुए हैं। आप इनके लिए दुआएं कीजिए और आने वाले दिनों में जो गलती आपने की है उसको ना दोहराइए और उसको सुधारने का एक मौका मिला है। आने वाले दिनों में आप उस गलती को सुधार सकते हैं, लेकिन काफ़ी इनके लिए दुआएं कीजिए कि इन गरीब बच्चों के लिए ये 2 नुमाइंदे आपकी आवाज़ बन के आए हैं और आपकी आवाज़ बनेंगे हमेशा।
हारने वाले अगर आपके साथ आके खड़े रहते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। 4 साल में इस विस्तार को कुछ मिला नहीं है, विकास को जो था आपके पास वो भी छीनने के लिए आई थी सरकार के नुमाइंदे, और ऐसे समय पे ये 2 लोग आकर उसको बचाने की कोशिश करते, कहीं ना कहीं उस कोशिश में लोग कामयाब हुए हैं। 2 गार्डन सरकेज के अंदर हमारी हयाती के अंदर मंजूर करे थे, 2 गार्डन, एक टीपी 85 के अंदर और दूसरा यहाँ बाजू। लेकिन देखो अभी हम हट गए तो उनको मन फावे यूं डिसीजन उन्होंने ले लिया कि यहाँ बाजू आके वो कर दिया बराबर। तो ये चीज है, अगर हम होते तो हम कुछ भी लड़त तो देते ही देते, और फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी भी लेकर आते हम। क्या इसके लिए तो इतने तो हम सक्षम है कि उनको हिला ही सकते हैं, भले सिंगल थी तो भी इतना उनको तो भारी पड़ती थी में बराबर। बहुत दबता है और बहुत मुश्किल होती है उनके राज में, ये सब काम लाना आसान नहीं है, बहुत हार्ड काम है। एक तो दबाया जाता है कौन को, दूसरा कमेटी के अंदर बुला कर भी बोलते हैं अपना मुद्दा नहीं लेते, अपने विस्तार के काम नहीं लेते, नहीं तो फिर हम कमेटी में क्यों बैठे। तनुरा बहुत सी बार ऐसा हुआ कि कमेटी में मुझे बिठा कर भी नहीं लेने के, तो फिर हम वो चीज होती है हमारी। और बड़ी बात बता दूं आपको कि सरखेज रोजा कमेटी यहाँ पर, सरखेज रोजा कमेटी के अबर अली सही साहब यहाँ पर ये सब चीजें देख रहे हैं। वो अवड़ा के भी लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेशन के भी लीगल एडवाइजर। सरखेज रोजा कमेटी में बैठने के बाद उन्होंने इस गांव के लिए तक क्या है वो कभी आगे बातें नहीं है। अगर जिम्मेदार वो है, अगर वो हमें बताएंगे कि ऐसा है तो पता चले। मैं कि मुझे उन तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि बड़ा भाई बच्चों के खेलने की इतनी सारी जमीन है जो आपको संभालने लिए दी थी, कई लोगों ने ली और बेच दी। आप अभी गाँव में बच्चों के लिए आप कभी ना कभी रिटर्न होंगे तो एक अच्छा सा काम करके जाइए, बच्चों के लिए हमारा साथ दीजिए और प्रेशर होगा मैं इस चीज को जल्द करवा दीजिए। मैं बराबर भाई को आपके माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। तो कमेटी बराबर बनी नहीं है, कैडमेंट है बिना आधार के लोग कर जो है अधिकारी को वापस भेज सके। बस अगर आधार आएगा यहाँ से मिलेगा कुछ पा तो ये अगर आपके लिए इससे बेहतरीन और इससे बढ़िया ग्राउंड बना के देते हैं।